अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं कॉमेडी विद मैंगो पीपल और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में एक लड़की जो अपना मुद्दा लेकर हाजिर हुई है, वो मुद्दा ये है कि लड़की है शहर की पढ़ी लिखी और उसकी मंगनी कर दी गई है उसके मामू के बेटे के साथ। आज स्टूडियो में मौजूद है उसके मामू और उसका मंगेतर। चलिए चलते हैं लड़की से, जानते हैं माजरा क्या है। जी बताए माजरा क्या है। देखिए जी, देख रहे हैं। खबरदार से तुमने मेरी तरफ देखा नहीं, मेरा पुੱਤ तेनू नहीं वेखेगा तो होर किहनू वेखेगा? तू मंगेतर है ओदी। मैं अपना मुद्दा बयान करूं? जी जरूर जरूर। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि मैं शहर की पली बड़ी एमए पास लड़की, ठीक है, इस जाहिल गवार से क्यों शादी करूंगी? अच्छा, इस पर जी आप क्या कहते हैं? ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ। ਆ ਕੁੜੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, कब हुई थी आप दोनों की मंगनी? मेरे पैदा होने से पहले। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब मेरी अम्मा की शादी हुई तो वो उनको इनकी अम्मा ने कहीं देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत औरत है, तो जब भी इनकी बेटी पैदा होगी मैं अपने बेटे के साथ उसकी शादी करूंगी। लो जी, हो गई मंगनी। ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੋਣਗੇ। हाँ बिल्कुल। ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਬਣਨਗੇ। जी बिल्कुल सही। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ। अगर आप लोगों का बचपन से ही ये माइंड था कि इन दोनों की शादी करनी है तो लड़की की तरह अपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ लिख के की करना? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਿਖਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ करनी है? कुछ अकल आ जाती है आपके बेटे को, कुछ तमीज आ जाती है। देखिए वो बैठा कैसे हुआ है, उसे तो बैठने की तमीज नहीं है। क्या किसी महफिल में ऐसे बैठते हैं? ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੜਨ ਦੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ 40 ਮੱਝਾਂ। और ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? लड़की अच्छी खासी अंग्रेजी बोलती है, पढ़ी लिखी लड़की है, इन दोनों का क्या जोड़? इस गवार से क्या शादी करूं? की चाहिदा, ओथे गया सी, एथे गया सी, एथे बैठो, ओथे बैठो, बोलने तक की तमीज नहीं है इन लोगों को, तो मैं कैसे शादी करूं? ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। जैसे कि ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, हाँ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੇਗੀ। इनकी जिंदगी गाय भैंस और गोबर से कभी आगे गई नहीं। ठीक। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? की ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ, हाँ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। क्या बात है। अपनी बेटी की शादी करते हुए भी यही क्वालिटीज देखते हैं दामाद में? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੇਰੀ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਨਿਆਣੇ ਨੇ। क्या बात है। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, अंग्रेजी बोलना जानते हो तुम? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਜੰਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। आम जिंदगी में कोई अंग्रेजी का लफ्ज तुमने बोला और बड़ी बेजा बेजा हो गई हो। ओह माय गॉड, किस तरह के सवाल आप कर रही हैं? ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, अच्छा ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾ, ਅੱਛਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਫਰ ਬੋਲੀ ਆ। अच्छा ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧੁੰਮਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੁ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਂਦਾ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ। अच्छा क्या शर्त? ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰ ਬੋਲਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਕੁੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੋਂ। क्या ये शर्त मानती हो तुम?
मंजूर है। चलो जी अंग्रेजी बोलकर मेरा दिखाओ। ਪੁੱਤ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਂਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ओके। Once upon a time I saw a guy ਸ਼ਾਬਾਸ਼। and he was very biggest tid. ਸ਼ਾਬਾਸ਼। It's a very interesting thing. ਸ਼ਾਬਾਸ਼। He have a big दूध. ਯੈਸ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। अब्बा तेनू फकर होना हुन। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੁੜੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ जी कैमरे के पीछे खलोता है। ਆ ਸਦਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ। ਆ प्रोग्राम तो बाद मेरे को ले नहीं सकते। अच्छा सदके के पैसे भी अपने बटुए में। ठीक। बाद दे देंगे। यही तो इनके हालात है। मैं समझा के थक गई हूँ कि मैं अपने स्टैंडर्ड का कोई देखूंगी। कोई पढ़ा लिखा उसे उठने बैठने खाने पीने के एटिकेट्स हैं। एग्जैक्टली आपको पता भी है आपने जो इंग्लिश बोली है इसका मतलब क्या है? Yeah, I know अब्बा जी। बस साडा काम अंग्रेजी बोलना। मेरे अच्छा। मुंडे ने अंग्रेजी बोलती मतलब है कुड़ी पढ़ी लिखी आपे काट ले जो भी बात। आपने इसके लिए गांव की कोई अनपढ़ इस जैसी गवार लड़की क्यों ना देखी? मां कर दिंदा कम से कम 135 रिश्ते ने मेरे मुंडे वास्ते। हाँ। नाल दे सारे पिंड दे कुड़ियां दे रिश्ते मेरे मुंडे से लेके आए ने। मैं नहीं मन्निया। क्यों? बचपन च जुबान हुई सीगी एदे प्यो नाल कि तेरी धी मेरे घर दी नूह बनेगी। आज 4 जमाता पढ़ गई है। क्या इसको गांव में कोई लड़की पसंद नहीं आई? ना 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 अल्लाह माफ करे असि शर्म हया वाले लोग हैगे हैं। असि कोई अच्छा। बेशरम लोग नहीं हैगे। मेरे मुंडे ने अज तिकर किसी औरत नूं अक चुक के नहीं वेख्या। हाँ। इत्थे तिकर के बकरी नूं भी अपनी भैन समझदा। What is this? मतलब आप अपने बेटे के लिए कोई गांव की लड़की क्यों नहीं ढूंढते? कादी जरूरत है इहदे से कुड़ी लभन दी। अच्छा। घर दी बच्ची यार यही इहदी बीवी बनेगी। लेकिन ये लड़की इसने एमए किया हुआ है, एमए पास है। आपके बेटे ने तो मैट्रिक भी नहीं किया। पहली गल के इस कुड़ी ने साडे को पुछ के एमए नहीं सी कीती। हां सानू पुछदी असि मुंडे ने भी नाल दाखिल करा देंदे भी दोवें इकट्ठे पढ़ो। इन्हें चुप करके एमए कर ले च मेरा की कसूर? आपके बेटे ने मैट्रिक नहीं किया तो उसे एमए में कैसे दाखिल करवाते? तानू मान किस गल दा भी इन्हू अंग्रेजी आंदी? बिल्कुल वो लड़की पढ़ी लिखी है, इंग्लिश बोलती है। इन दोनों में लैंग्वेज का ही डिस्टेंस हो जाएगा तो फिर कैसे जिंदगी गुजरेगी? सीधी गल इत्थे मुकाबला करा लेने अंग्रेजी दा। अच्छा। ठीक है ना। जेड़ा अंग्रेजी ज्यादा बोलेगा ओदी गल मान ली जाएगी। पूछो कुड़ी नू कबूल है? क्या कहती हो, कबूल है? चलो जी शुरू करते हैं मुकाबला। चल बोल इंग्लिश। असि मतलब दसांगे मेरा मुंडा मतलब दसेगा ओदा। I just want to back my home. खोती रेडी घर में खड़ी कीती हुई है। What is this? असि जवाब सही दिता तू इंग्लिश गलत बोली है। अब्बा आई विनर। एक मिनट ठहर जा। अजे किथों अजे हुन तू इंग्लिश दा लफ्ज बोल ए मतलब दसेगी। सेकंड सेंटेंस। ही इज माय राइस। राइस क्या मतलब? ये मेरे मतलब चावल है। नो ए मेरी बुड्ढी आ। शाबाश शाबाश। हार गई ताड़ी कुड़ी, हार गई कुड़ी। ओनू ही माई राइस दा मतलब ही नहीं पता। क्या बात है? राइस का मतलब आपको पता है? राइस का मतलब चावल होता है। भाई ठीक है तुसी कहंदे हो कि राइस दा मतलब चावल होणगे। अच्छा। मुंडे दी नीयत देखो ओने अंग्रेजी च की कहना चाहे। ओने उसे क्या इतना नहीं पता कि अपनी बीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वो मुझे क्या सारी जिंदगी सुकून देगा। बिल्कुल। और सहूलियात बहुत मैटर करती हैं। गांव में तो सहूलियात ही नहीं है। जो ना लड़की एसी शहर की है, पली बड़ी है। ना एसी है, लोड शेडिंग अलग से है, उसके बाद फ्रिज नहीं है। कोई मेहमान आ जाए तो ये मोहल्ले में से बर्फ मांगने चले जाते हैं। ठंडा कुछ मिलता इस नहीं मामले है। पर क्या कहेंगे आप? ओ मेरा पुत्र अजे तू शहर च बैठी है तन्नू अजे पिंड दी सहूलतां दा नहीं पता। अच्छा क्या क्या सहूलियात है गांव में? ए आवे एसी दी की लोड़ है मैनूं दसो। अगर जो पहली गल के पिंड च इन्नी गर्मी हुंदी नहीं। अच्छा। ठीक है ना। दूसरी गल अगर गर्मी होवे ते असी उत्थे पीपल दा दरख्त आ ओदे थल्ले मंजी डा दी अगर फिर भी गर्मी लगे ते चद्दर नूं गिला करके उत्ते लै लो। एसी ते बंद हो सकदा ओदी ठंड नहीं मुकदी। ओहो। ठीक सही। है ना। फ्रिजां दा रिवाज हैगा शहरां च। ठीक। फ्रिज च चीज ठंडी हुंदी ना। हाँ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਧ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢ ਬਣ ਕੇ ਟੂਵਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। आहा। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਵਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਬ ਸੁੱਟੋ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੱਢੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। आहा। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਖਰੀ।
सही। बाकी और लोड शेडिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? लोड शेडिंग जी शहरों के मसले ने, आहा। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹੀਨਾ ਕ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ। खैर इस ख्याल से भी मेरे दिल को कुछ होता है। मैं अगर इससे शादी कर भी लेती हूँ, ये रखेंगे कहाँ पर मुझे? ਕੁੜੀਏ तकरीबन 2 किले दी साडी हैगी हवेली। मैं भैंस नहीं हूँ, इसकी बीवी हूँ। मुझे वहाँ पर बांधना नहीं है, और रखना है। डेफिनेटली ये पढ़ी लिखी लड़की है, शादी के बाद जॉब करने का भी उसका माइंड होगा। इस हवाले से आपके बेटे का तो नहीं अब्बा जी, जॉब नहीं करन देनी इनू। अच्छा। खबरदार ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ। हाँ अब्बा जी इनू समझा दी, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ हाँ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤਾ? हाँ बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਥਾਪੀ ਥਾਪ ਲੈਂਦੀ। अरे वो इस कल्चर में ही नहीं रही, वो शहर में रही है। शहर की लड़कियों को ये काम नहीं करने आते। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? पिंड का कल्चर वो उस पुराना जगह से बाहर जमाना है। निकल आई ना, पुराना जमाना है। वो उस जगह से बाहर निकल आई, शहर में मूव कर गई। देखिए जी, वक्त बहुत आगे निकल चुका है, मगर ये लोग अभी तक पीछे ही बैठे हैं। ये अभी तक आगे आ ही नहीं पाए, कोई तरक्की नहीं कर पाए। ठीक है, सब्जियां, दूध, गाय, भैंसे, गोबर से बाहर निकल के ये हमें सर्विसेज देते हैं, हमें शहर में चीजें पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग इस सोच पे जाएं कि इनके बेटे की शादी मुझसे हो जाए। मेरे मामू है, मैं इज्जत करती हूँ, वो मेरा कजन है। बिल्कुल। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਲਸ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਬੀਏ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੂੰ। बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ में सिर्फ खालिस चीजें ही मौजूद नहीं होती। बेसिक नीड्स, आप समझ नहीं रहे हमारी बात इनको को। पहले ये डेफिनेशन बताएं, बेसिक नीड्स होता क्या है? जी हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ- ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? जिंदगी की कुछ जरूरियात होती है जो आपका बेटा मेरी नहीं पूरी कर सकता। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕब मामू आप इस बात को समझ जाएं, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। जी अब- बिल्कुल, और करनी भी नहीं चाहिए। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ, अच्छा। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ठीक। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ शिफ्ट हो जी। देखिए, ना समझने वाली बात नहीं है। मैं आपको हाँ। एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। इसके साथ तो बैठकर खाना खाओ तो पूरे मोहल्ले में आवाज जारी होती है, चप ओह चप। माय गॉड, यानी तुम्हें खाना खाने के भी मैनर्स नहीं है। आधे से ज्यादा खाना नीचे गिरा होता है। ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। बाकी शहर आपको खाएगा। पता है ये चीज शहर में कितनी नापसंद की जाती है कि खाना खाते हुए हाथ आपके पूरे सालन से भरे हुए हैं, और आप चावल खा रहे हो तो वो आपके इर्द गिर्द हर जगह मिल रहे हैं दाने दाने के। आपने चावल खाए हैं और उस जगह पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई खाना खा और गांव में तो इनके घर पर स्पेशली कुछ मीठा खाने का तो सोचो ही मत, क्योंकि मीठा आपके पास बाद में आएगा और 70-100 मक्खियां उसके ऊपर पहले Oh my बैठी God. होती हैं। नहीं ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, वही मक्खी जो भैंस होती है उस पर बैठती है, वही मक्खी गटर का जो गारा होता है उस पर बैठती है, और वही मक्खी आकर खाने पर बैठती है तो वो साफ होती है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੈਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੈਦਾ ਨੇ। जी मुझे लगता है ये बहस कभी खत्म ही नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस फैसले पर पहुंची हूँ कि एक ऐसी लड़की जो शहर में पली बड़ी है और अच्छी तालीम हासिल की है, उसकी गांव में शादी करना हरगिज ठीक नहीं है। यहाँ चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। तेरा पुत समझे दी कोशिश कर, कुछ भी नहीं हैगा, बड़े दी इज्जत दा मसला हैगा। आ देख ते चंगा भला सोहना हीरो लगन डया मुंडा, वेखते सी तू गौर नाल। पहले 2 महीने फिर रच में जाएंगी तू, तेनू पिंड बड़ा सोहना लगना।